हाँ। जय सच्चिदानंद। आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जो रे। આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. मन पण कोई जीवनो बुरो विचारे न हो जो रे. મનથી પણ કોઈ જીવનો વૃદ્ધ વિચારે ના હોજો રે. सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चित मन हो जो रे. માનવ सामान्य ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતન હોજો રે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. वाणी शीतल माधुरी बेलाडे ते मोटो रे. વાણીથી શીતલ માધુરી બેલડે તે મોટો રે. लोकोने सुख आपे तेवा कायांते झुक जोशो रे. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયા તે ઝુકજો રે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. लक्ष्मी गमने ते वृंदामा मेलवनारू पुनियो रे. લક્ષ્મી ગમતે તે દંદાર વેલવનારો પુનિયો રે. पुण्योपाजक सत्संग मागी कर छीदननी दूजो रे. પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરજે જનને દોલું રે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. हो जाते विज्ञान स्वरूप छो प्रयोग जो तू हो जो रे. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હોજો રે. मानव काया सिद्ध मंदिर छे आत्मा अंदर नो खोरे. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखने शांति हो जो रे. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને
सुख में शांति हो जो रे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી के आचार्य अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कथा के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેલાનું કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવત, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके, तो शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना आती है छोटी। ओके, वो करो। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો. એમ જ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારો સ્વરૂપ છે. મારો સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. એ શુદ્ધ આત્મા દાદા, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મારાથી જે જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપને સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયથી ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપને પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ના કરું એવો દૃઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो कि हमें भेदभाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય. हमें તમારામાં अभेद स्वरूपे तन्मय आकार रहे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। ओके, ये फर्स्ट 3 कलम बोलते हैं तो ऐसे मैकेनिकल बोलते हैं कि मालूम पड़ता है कि क्या उसका मीनिंग है? मालूम पड़ता है। पता है ना। नंबर 1 में क्या होता है? क्या किसी मिस्टेक का हो भी सकता है? किसी का भी अहम नहीं दबाना। वेरी गुड। नंबर 2 का? धर्म धर्म को पालन करना है।
धर्म का डेफिनेशन मांगेगा तो दूसरों के बारे में सोचना, उनकी अच्छाई सोचना। तो अब धर्म सबका धर्म है ना, खुशी का धर्म है, आपका धर्म है, सबका मेरा तो उसका सब रिस्पेक्ट करने। हाँ। इट मीन्स यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। और तीसरा, तीसरा हमें बड़ों के साथ लघुत्तम में रहने का। वेरी गुड, सब रिस्पेक्ट हो गए। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, मोनी करिश्मा तीन मंत्र बोला है, वी विल फॉलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वीत्रागाय, नमो वीत्रागाय, नमो नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावनम, नमो लोये सवसानम्, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोक्कारो, सर्व पावपनाशनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेशं, मङ्गलाणं च सर्वेशं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके दक्ष। हे राधा भगवान, मैं कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरा शरीर उठा दे। मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और पुस्तक में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबतों को संख्या हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूट सकती। प्राप्त मन वचन काया कर और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा ताकि दादा गण जैसा परम उत्कृष्ट मानव पर्सनालिटी बन तो। हे राधा को अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूं। मैं कभी न अहंकार से जाप नहीं दूंगा। मुझे संबंध माना तांत्रिक शक्ति दीजिए। आप शैला शनैनजी। जय सच्चिदानंद। આવો છો ને? આવો છો ને? ઓકે. Is he coming? યા 5 મિનિટમાં આવે. ઓકે. Can I? जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा रक्षण ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। કે દક્ષ. ઓકે, કરિશ્મા. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान है। हमें बच्चे, हमें आपके बच्चे, आपके बच्चे सच्चे, दिल के सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे,
फिर भी ये करके काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय ओके, सच्चिदानंद। करिश्मा सेपरेशन प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, મેં જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Daksh. हे शर्ट में देखो ना अलग अलग से लगे। हे शर्ट में देखो ना परमानेंट और टेम्पररी। हे शर्ट में देखो ना रियल और रिलेटिव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज आज रिपोर्ट कैसा रहा? डेली एक्टिविटीज में कुछ पेन हुआ, कुछ सम आया था? daksh। डेली एक्टिविटीज में तो मेरा ओ सॉरी, आज अ, नहीं, मैं सारा वीक की बात कर रहा हूँ। जस्ट सारा वीक में कुछ कंसिस्टेंसी कुछ है, दुख के बाद लायक में और कुसंग। हाँ बोलो। इतने दिन में तो मुझे कुसंग तो था। अ, इतने मुझे कुसंग नहीं था। और मैं पढ़ाई में और मैं डेली रूटीन में मेरा अच्छा था। इतने दिन में कुछ भी पेन नहीं हुआ। ओके, साक्षीबा। हाँ, जय सच्चिदानंद। ऐसा तो ये पूरे वीक में मुझे एक्स्ट्रा स्टडी में पेन हुआ है, क्योंकि उसमें मेरे साथ कुसंग था। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा स्टडी नहीं कर पा रही थी और उसमें मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा था बहुत। कुसंग नहीं है उसमें? कुसंग तो नहीं था कि क्या? टाइम था आपके पास, था एक्स्ट्रा? हाँ, टाइम भी था एक्स्ट्रा। वो तो कुसंग बोलते हैं ना, तो राइट। मैंने कुसंग तो बोला। हाँ, कुसंग बोला। कुसंग ही कुसंग होता बोला, है ना, मैंने जो टाइम सच्चिदानंद होता बोला। है, पढ़ाई नहीं कर सकते तो कुसंग नहीं बोलता है, वो कुसंग ही है ना। कुसंग तो बोला क्योंकि अपना मैंने। क्या है, कुसंग का डेफिनेशन क्या है? अपने ध्येय को, गोल को, तो कहता है। हाँ, हितकारी होता है वही ना। ओके, आई मीन डैमेज करता है। ओके, करिश्मा आपका तमिल का कैसा आज रहा? बस वो कर दीजिए। अच्छा मेरा आज पढ़ाई नहीं की? नहीं। क्यों? टाइम नहीं था कि कुसंग आ गया था? खेलने की तो मना है, तो टाइम किधर आप करते, पास करते? आज हाँ, आज कुसंग आ गया। आज क्या था? आज मैंने कुसंग आ गया, मैंने खेलने के लिए गई। तो पापा ने मना किया है ना खेलने के लिए, हाँ, तो क्यों गए थे आप? पापा ने पापा ने मना किया, पर पापा ने आज भेजा था। पापा ने बोला कि जाओ? पापा की परमिशन नहीं ली थी? आज तो फ्राइडे है ना। नहीं, नहीं, उसने नहीं ली, ऐसे ही चली इट्स गई। वेरी बैड। अभी दीपक दादा बोलेगा ये पापा के विरुद्ध जाने का बहुत बहुत ज्यादा जुर्म है। ओके, खुशी दीदी। हाँ, जैसे पुरानी मुझे एक्स्ट्रा स्टडी में पेन हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा स्टडी बहुत कम की थी इस वीक में। सारा भी क्यों? क्या कुसंग आया था? टाइम था बट मैं स्कूल का होमवर्क और नोट्स बहुत थे, इसलिए मैं वो करने लग गई। टाइम लगता है, टाइम तो होगा तो वो कुसंग नहीं बोला जाता है, नहीं करता है, वो गोल नहीं पचा कंप्लीट करते, वो कुसंग ही बोलता है। दीपक दादा बोलेगा बाद में। और मोनिका। हाँ, जय ओ सच्चिदानंद। एक मिनट खुशी। हाँ, हाँ, आज मैथ में कितना प्रॉब्लम किया? आज मैथ नहीं किया था मैंने। क्यों? टाइम नहीं था? नहीं था बट Hey, I want all of you, both of you,
10 प्रॉब्लम्स अ डे और हमको भेजना। आई वांट टू नो खुशी आपका क्या प्रॉब्लम है। 10 प्रॉब्लम्स अ डे, डजेंट मैटर, सैटरडे हो संडे हो, किधर भी जाने का है। ओके, खाने का मत, और कुछ भी करो, पेनल्टी दो आपको। 10 प्रॉब्लम्स अ डे। ओके, हाँ अब करंट का और वो पीछे का स्टार्ट करने का, आज जून हाँ। से। ओके मोनिका। जय सचिदानंद, इस वीक में मैंने वीक सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दिया था, उसमें मुझे पेन हुआ और मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि मैंने मन की बात मान ली कि ये नहीं करना है आज, तो मैंने नहीं किया। ओके, यू हैव टू गेट सीरियस, वेरी हाँ, सीरियस। अभी टाइम कितना बाकी है? 2 महीना है, 2.5 महीना है? 1 महीना। ओके, और दूसरा, बिफोर दीपक दादा बोलेगा तो, ये किसने, ओ, ये किसने इम्प्लीमेंट किया था आज? दक्ष, साक्षीबा, इम्प्लीमेंट किया था? नहीं। नहीं नहीं। खुशी? नहीं। करिश्मा? नहीं। मोनिका? ओके दीपक दादा, आप वापस भैया, उन लोग की ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं पढ़े के पहले, और बाद में प्रॉब्लम होता है। तो 2 प्रॉब्लम है आपको, मेरा मेरा फिर कुसंग फिर एंड से ये। मेरा फिर से बेसिक प्रश्न यही है, वेयर इज योर टाइम टेबल? यू डोंट हैव अ टाइम टेबल। भी टाइम टेबल नहीं है तो क्या करेंगे? बोलो। तो आपको पता चलेगा कि ये करने का है, ये करने का है, ये करने का है। भी टाइम टेबल ही रखते नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये करना है, ये करना है? ये सब मिस होते जाएगा। चलो मिस हो गया, प्रतिक्रमण किया है कि नहीं किया है? नहीं। सुनाई देता है मेरा आवाज? हाँ हाँ। तो सुपर ब्रेन योगा किया? हाँ। नहीं किया? वो हाँ। तो सब अभी करते हैं दीपक दादा। अच्छा, यस, अभी सूर्य नमस्कार भी किया? उन लोग का डेली डेली रिपोर्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, लेकिन फिर ये क्या है? फिर टाइम टेबल तो है नहीं। टाइम टेबल के बगैर ये हमारा ये सारे दिन का जूम का टाइम टेबल है, इसीलिए हमें पता चलता है कि दीज आर द टाइमिंग्स। ऐसा नहीं है? है, बोलते नहीं है। हाँ। है। और जो, माय गॉड, सी दे डोंट हैव टाइम टेबल सो यू कांट, वो कुछ बोल नहीं सकते। ओके, कि तो अभी आपका से डिसीजन ही नहीं है ना, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू प्लान टू डू, तो फिर वो वीक सब्जेक्ट है कि स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलो कभी ऐसे करो, अभी 2.5 महीना बाकी है। यू मस्ट डू द टाइम टेबल, कर आके क्या क्या करने का स्टडी, नो फूलिंग अराउंड एनी मोर। ओके, स्पेशली एक, वीक सब्जेक्ट जिसमें कम आते मार्क्स या फेल हुए हैं, तो उसका तो एक टाइम टेबल बनाओ। सारे दूसरे सब्जेक्ट का तो आप कर ही लेते हैं या आता है आप। समझ में आया? यू हैव टू, कल तो सैटरडे है, तो सब स्केड्यूल बनाओ। ओके, और श्रेय आपका रिपोर्ट कैसा है आज? आज सारा आज वीक का, सारा वीक में क्या कुसंग और कुछ को दुख दुख की बात है? हाँ, मुझको पूरे वीक में मैंने मम्मी को हेल्प नहीं किया है, उसमें उसको दुख हुआ था। और जब भी मैं गुजराती पढ़ रही थी तो मैं
खेलने चली गई थी। हाँ, ये कैसा है? हाँ? पढ़ने टाइम से टेबल। नो, अगेन टाइम ब्रेक, टेबल। नहीं वो ब्रेक का टाइम था 10 मिनट्स के लिए, तो मैं नीचे चली गई और उसमें हाँ तो ब्रेक का 10 मिनट, और 10 मिनट से वापस नहीं आए आप? एंजॉय। बोलो, ओके। क्या करें। अभी टाइम 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 टाइम। ओके। ओके, आज तेजस दादा, जी। आज जो टीचर आए हैं तो आपको सब सिखाएंगे। अभी अभी कुशांग और फ्रेंडशिप का चल रहा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब आपके पुत्र आए तो उन लोग टीच करता है नेक्स्ट डे। तो श्रेया आज दीपक दादा का बोलेंगे। श्रेया। नहीं, नहीं मैंने केशव दादा का की। ओह, आप केशव दादा है, ओके। केशव बोलो। दादा का, ओके। हाँ। हमको एक ऐसा दोस्त चाहिए कि जो हमको हमारी गलतियां बताए और हमको नहीं, और वो पूरी ट्रांसपेरेंसी और प्योर होते हैं। एक सही दोस्त ऐसा होता है जो हमको हमारा करियर और सब मुश्किल में हमको गाइड कर सके। और उन उन उनने में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एक सही दोस्त हमारा काम कभी नहीं बिगाड़ते, जैसे कि हम एग्जाम के टाइम हमको बुलाते हैं मूवी देखने के लिए, और फिर हम जाते हैं, फिर हमारा ही एग्जाम में पेपर हम सही से नहीं लिख पाए और वो हमसे आगे बढ़ सके, वैसा नहीं होना चाहिए। और एक एक सही दोस्त कभी भी कुसंग की तरह नहीं जाता है, पर उनके गोल में और करियर में बहुत फोकस करते हैं, और सब और पूरी नॉर्मेलिटी में रहते हैं। और कुसंग का मतलब ये भी होता है कि जब हम चीट करते हैं खुद के साथ, झूठ बोलते हैं और पूरे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पार्टीज में चले जाते हैं और नॉर्मेलिटी के बाहर चले जाते ये आप, ये तो कल तो केशव दादा ये आपका नहीं था। हैं। वो फ्रेंड्स का बताया था। नहीं, वो किशोर, ये किशोर दादा ये करिश्मा का है। आपका तो दीपक दादा का है। वो जो द डे यू मिस्ड इट। ओके। करिश्मा। हाँ, जैसे कि दादा केशव दादा ने यही कहा था कि हमारी एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, तो हमें पहले उसे चेक करना चाहिए कि वो कैसा है, वो हमारी मदद कर सकता है या नहीं, वो कुसंग का दोस्त है या नहीं। और हमारे दोस्त जब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो हमें आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आज हम खेलते हैं या फिर कुछ करते हैं या फिर मूवी देखते हैं। तो उस ऐसा नहीं होना चाहिए। कुसंग का दोस्त कभी भी हमारा फ्रेंडशिप तोड़ता है या फिर से जोड़ देता है। कुसंग हम अच्छा दोस्त ये करता है कि हमारी मिस्टेक बताए और हमें सही रास्ते पर लेकर जाए, वो हमारा अच्छा दोस्त होता है। उ- अच्छा दोस्त हमें हेल्प करना चाहिए, हमें अच्छा स्कोर करने के लिए मार्क पर, और हमें सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो ऐसे करना, वही हमारा अच्छा दोस्त होता है। रियल दोस्त ये होता है कि वो जब भी हम कुछ भी गलत काम करें या फिर एग्जाम टाइम पे हम कुछ एग्जाम के लिए हम पढ़ाई करें बिना खेलते हैं या फिर मूवी देखते कुछ भी करें, उस वक्त वो आकर हमें कहता है कि ये राइट टाइम नहीं है, हमें स्टडी करना चाहिए, हमें मार्क अच्छा लेकर आना चाहिए, वो हमारा रियल दोस्त होता है। और रियल दोस्त हमेशा हमें गुड हैबिट सिखाते हैं, कुसन के दोस्त हमें हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाकर गलत सिखाते हैं। अम, कुसन के दोस्त जब भी कुछ भी कहते हैं वो हम कर लेते हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा वो कराते हैं गलत काम। अम, जय सच्चिदानंद। इट्स वेरी गुड। श्रेयस दादा, ये दोनों टीचर कैसे आपको किस अच्छी तरह बिल- से पढ़ाया आपको? बिल्कुल। कि
Shreya, Monday you to do Deepak Dada. That was your original turn. Okay. Okay. तो अभी आप और okay, बाद में करें. Okay, शैलजा अभी आप बात करिए कुछ और फ्रेंडशिप के बारे तो आपने अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त या कुसंग का दोस्त उसकी बात की। अभी कुसंग कई प्रकार के होते हैं और सत्संग या तो अच्छा दोस्त भी कई प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका अभ्यास का कैरियर है, तो जो दोस्त कॉन्सेंट्रेटेडली अभ्यास में, मैंने जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और तो पढ़ाई के लिए वो हमारा दोस्त मैंने रोल मॉडल होना चाहिए। नहीं कि अपना समय बर्बाद करे। जैसे दीपक दादा बिगड़ रहे थे, आपके ऊपर टाइम टेबल ही नहीं है, ऐसे दोस्त को आप दोस्त बनाओगे तो आपका भी टाइम टेबल खो जाएगा। तो हम प्रेप साइंस में पढ़ रहे थे जब, तो पूरे बड़ौदा में हमें कोई पहचानता नहीं था, छोटे गांव से हम तो आए थे, मगर कुछ लेके आए थे प्रकृति में। सो रात को कभी हमने वो नहीं किया, नियम से उठने का, नियम से सो जाने का। बट बहुत अच्छा कर सके लोग भी हमारे पास जो आते थे तो गाइडेंस के लिए, तो अच्छा होता था। तो कहने का मतलब है कि आप, दोस्त तो अनेक होते हैं, मगर जिनको आप नजदीकी के दोस्त बनाना चाहते हैं वो कौन से फील्ड में, किससे आप क्या चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये अभ्यास की बात की, दूसरी बात है चारित्र, और जिसका जीवन का लक्ष्य अच्छा है। और तीसरी बात यदि सत्संग है दादा भगवान का, तो और ही बात होती है, सोने में सुहागा होता है। कुसंग की एक व्याख्या दादा भगवान ने ये दी थी कि परमार्थ ये है कि जो अपने आत्मा को भुला दे, मैंने शुद्ध आत्मा या सत्संग और दादा को भुला दे। दूसरा कुसंग का अर्थ ये भी होता है कि जो अपने ध्येय को भुला दे, अपना ध्येय से हमें विचलित करे, ये सब कुसंग है। या तो और शॉर्ट टर्म मस्ती मजाक मजा आता है, मगर लॉन्ग टर्म में यदि वो आदत बन गई तो भारी नुकसान करता है। और सबसे बड़ी चीज, ये साइंटिफिक एक बेसिस है सत्संग या कुसंग या फ्रेंडशिप का, कि दो चीज है। दादा भगवान ने बोला है कि जैसे हम हींग, कोई बर्तन में हींग वाला कुछ पकाते हैं, तो बर्तन में हींग की वास या तो गंध कई समय तक रहती है, उसको बार बार धोना पड़ता है। तो दादाजी ने बोला कि हींग का पास स्पर्श हुआ तो इतना बर्तन में रहता है, तो हमारा क्या हो सकता है। दूसरी चीज, पुद्गल इफेक्टिव है। हमारे मनवाणी का है कि जो सबके पुद्गल है वो एक दूसरों को असर करने वाले हैं, और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनसे बच के रह सके। सो इसलिए पूरे पुद्गल की असर वाले और स्पंदन वाले जगत में हमें हम खुद, हमारे खुद को अंदर से बचा के चलना है। बाहर तो सबसे मिलना जुलना पड़े वो बात अलग है, मगर अंदर से हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ में कितना क्लोज हो ना हो। तो मेरे ख्याल से ये इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो पिछले किसी ने, संत ने बोला है कि सत्संग की घड़ी दो घड़ी में कितने जन्म सफल हो जाते हैं या स्वर्ग की सहल भी हो जाती है, और कुसंग की घड़ी दो घड़ी में कितने ही जन्म बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल में आया। मगर कहने का मतलब है, हर एक अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में हमारे जो, हमें आगे ले जाए, हमें प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, जो जिसको हम रोल मॉडल या तो जिसको हम इंस्पिरेशनल गिन सके, ऐसे चुन चुन के हमें मित्र या संग संग उनका चुनना है जो हमें हितकारी हो। ठीक है। ठीक है बच्चों लोग। हाँ। सब सोच में पड़ गए सब लोग। तो अभी आप एक कौन बोलेगा मंडे? खुशी। ओके दक्ष, आपका टर्न है। ओके हाँ ठीक है। ओके, वेरी गुड।
ओके, अभी कुछ दो चार आइटम याद आया। शैलेश दादा ने क्या बोला? सम ऑफ देम, दो सम ऑफ द सब आप तो पुत्र ने बोला है, पर देयर आर 3 और 4 वेरी गुड नया आइटम आया। मुझे उसमें एक डाउट था, पुद्गल क्या होता है असल में? हाँ, उद्गल का अर्थ है पूरण और गलन। तो हमारे सबके मनुष्य शरीर में दो भाग हैं। एक जो शुद्धात्मा का भाग है वो अचल है, अविनाशी है, कांस्टेंट है, वो पूर्ण गलन वाला नहीं है। और दूसरा ये जो मैटर से बना है, माइंड बॉडी स्पीच, जो चार्ज डिस्चार्ज होते रहते वो पूर्ण गलन वाले हैं। सभी चीज उसकी रिलेटिव की माइंड बॉडी स्पीच और उससे जो कनेक्टेड चीजें हैं वो सभी पूर्ण गलन वाली। मैंने परिवर्तनशील है, सुबह में खाया तो सब पर फिर निकाल हो गया, बैंक में पैसा डाला निकाल हो गया। ये माइंड बॉडी स्पीच भी बचपन से जवानी में आए, जवानी से फिर आगे धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ भी जाते। सो पूर्ण गलन मैंने फीलिंग एंड गेटिंग एम्प्टीड, तो उसका नाम पूर्ण गलन के ऊपर से मटेरियल पार्ट, रिलेटिव पार्ट जो है हमारे अस्तित्व का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैंने माइंड बॉडी स्पीच बोलो, नाम नाम की माया और सब कर्म, ये सब पुद्गल स्वरूप है, मैंने रिलेटिव है सादी भाषा में। ठीक है, और वो बहुत इफेक्टिव है। इसमें बहुत सारा साइंस है। दूर से भी कोई आता है हमारे तरफ, कई बार हम पहचानते नहीं है तो भी हमें भार लगता है, और कई बार हम पहचानते नहीं तो भी हमें आनंद होता है। ये क्या वजह है, कभी सोचा आपने? हर एक व्यक्ति की अपने ऊपर अलग अलग असर होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया अंदर? करना कभी। क्यों? तो कि हर एक व्यक्ति अपना एक बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड लेके आता है। उसका बॉडी के परमाणु की असर है, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्पंदन की असर है, उसकी ऑरा और एनर्जी बॉडी की इफेक्ट होती है एक दूसरे के ऊपर। तो जैसे दादा भगवान थे तो उसकी हाजिरी में बैठे तो कई लोगों को आनंद आनंद हो जाता था, और सब कुछ अच्छा हो जाता था अंदर बाहर। और कई लोग, आप चले जाओ कहीं जगह पे तो सब आपका डाउन हो जाएगा, आपको भागने का दिल होगा। यदि ऐसी कोई जगह पे आप पहुंच गए तो भागने का दिल हो जाएगा कि भाई यहाँ नहीं ठहर सकते। सो ये पूरा विश्व इफेक्टिव है। समझ में आई मेरी बात? शैलेश दादा, ये वेरी सिंपल पुद्गल अपना है। हाँ, जस्ट बच्चों के लिए थोड़ा एग्जाम्पल हो, पुलन गणन कैसे हो सकता है, और व्हाट नहीं इज। वही बोला, पूर्ण पूर्ण गलन का मतलब है फीलिंग एंड गेटिंग एम्प्टी। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाया तो हमने पूर्ण किया, अच्छा, तो उसका कुछ ना कुछ गलन होने वाला है। वो कोई ना कोई सिस्टम से गलन होगा, यूरिनरी सिस्टम से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा, ये नख में पसीने में कुछ गलन होता है, मैंने निकलता है बाहर। इसी तरह बैंक में पैसे डाले तो पूर्ण किया, जब उठाए तो गलन हुआ। हम भी, हमारी बॉडी भी, अभी आप लोग यंग है तो बढ़ रही है तो लगता है जिसे पूर्ण हो रहा है। फिर हम हमारी एज में आए तो आप देख सकोगे कि धीरे धीरे गलन की ओर जा रहे हैं। सो पूर्ण गलन ये पूरा रिलेटिव डिपार्टमेंट जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और जगत की सभी रिलेटिव चीज, वो पूर्ण गलन वाली और हानि वृद्धि वाली है। वो कांस्टेंट नहीं है, वो सतत हानि वृद्धि, वृद्धि हानि, हानि वृद्धि, पूर्ण गलन होता चलता है। विचार आया, गया, तो गया मैंने गलन हो गया। समझ में आई मेरी बात? ये जितने जितने साल हमारे जिंदगी के बीत चुके हैं वो गलन हो गए, हमने यूज कर दिए वो। ठीक है। तो शैलेश दादा, ये सत्संग में आता है तो उसका पूर्ण गलन के क्या फायदा होता है? सत्संग में जब आते हैं या सत्संग में आने का नक्की भी करते हैं, या तो जहां भी है वहां सत्संग मैंने क्या, तो को बोले सत जिनको प्राप्त है उनके संग में रहना मिले तो सबसे उत्कृष्ट है। दूसरी चीज, उनके जो साधन दिए गए हैं, ये 5 सत्साधन आप करते हैं, दादा की वाणी बाजते हैं, आरती करते हैं, वो सत 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 वो सत्संग है। अंदर भी हम खुद के साथ सत्संग कर सकते हैं। तो सत में अविनाशी की आत्मा की ओर ले जाने वाला, उसका क्या फायदा है? पहला फायदा
कि हमें बाहर के जगत से, हमारे उसके बोझ से, असर से छुड़वा के हमारे आंतरिक आनंद में, शुद्धात्मा में ला देंगे। हमारा न केवल शुद्धात्मा का आनंद बढ़ेगा, मगर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी, सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इसमें। तो वो तो ऑब्जर्व करते करते हमें पता चलता है कि पहले तो वो जगत की इफेक्ट से हमें छुड़वा देता है, मुक्त करवाता है, जगत के कुसंग के असरों से मुक्त करवाता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार पर जो बोझ पड़ा था उसको हटा के हमें आनंद में लाता है, हमारी इनर एनर्जी भी बढ़ती है और सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है अंदर। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो पॉजिटिव। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, मैं बड़ौदा के स्टेशन पर खड़ा हूँ, मुझे जाना है बम्बई की तरफ। गलती से मैं दाहोद या रतलाम या दिल्ली वाली गाड़ी में बैठ गया तो सब स्टेशन उल्टे आएंगे। फिर रजनी भाई जैसे कोई आए और मुझे धीरे से उठा के सही गाड़ी में बिठा दिया तो सब स्टेशन सही आने लगेंगे। सो सत्संग का ये है कि अपने खुद के साथ का शुद्ध, अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको की तरफ जाना, उसका आनंद, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका दर्शन खुला होना, और मन बुद्धि चेत अहंकार, मन वाणी काया में भी उसका हमें फायदा मिलना। अच्छा, उससे तो एक्सटेंडेड बेनिफिट्स कितने सारे हैं। आपको इतने सारे लोग कैसे मिले? रजनी दादा है, दीपक दादा है, जो भी जिनको भी आप आपसे आनंद कैसे मिले, उसका माध्यम क्या है? तो बोले सत्संग। हम एक दूसरों से कैसे जुड़े हैं? सिर्फ सत्संग से। अच्छा, बाहरी दुनिया और सत्संग की दुनिया में फर्क देखा कभी आपने? अभी आपको तो नहीं अनुभव में देरी है, मगर हमने काफी देखे कि बाहरी दुनिया में सब लोग पहले ऐसे सोचेंगे कि मेरा क्या फायदा है इसमें, तो ऐसे व्यवहार करेंगे हमारे साथ। यहाँ सत्संग में लोग उल्टा सोचते हैं कि मैं किसको काम में आऊं, मेरे से दूसरों को क्या लाभ में आएगा, मुझे लाभ नहीं चाहिए। तो पूरी दुनिया ही अलग है और यहाँ हम इतना सिक्योर्ड आनंद में रह सकते हैं। बाहर जाओ तो जैसे जंगल में चले गए और एक बाजू वाघ है, सिंह है, वरु है, कहाँ से कौन सा अटैक आएगा पता नहीं। तो इतना सारा फर्क है। और दूसरे आपने बताया ना फर्क देखता है कि नहीं, पर ये इवन स्कूल में तो कुछ उन लोग को देख फर्क पड़, मस्ट बी सीइंग सम डिफरेंसेस ना। स्कूल में क्या समझ में नहीं आया डिफरेंस? दूसरा सब उन लोग का क्लासमेट्स है, उससे हाँ उन लोग को तो थोड़ा डिफरेंट फीलिंग्स होगा ना, बिकॉज हाँ, दे वो नो। तो, हाँ वो तो होगा। सत्संग हमें सिखाएगा, दो चीज सिखाएगा। हर जीव के साथ हम कैसे रहें। तो अंदर से तो हमें सबके प्रति मैत्री, सब में हम शुद्धात्मा के, गॉड के दर्शन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम व्यवहार में हम हमारी सेफ्टी और गरिमा के लिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस जिसे बोलते हैं वो भी हम मेंटेन करते हैं। उसको प्रेम भी देते हैं, उसके साथ मैत्री भी जताते हैं, मगर अंदर से कितना। तो क्या बोले, माई सेफ्टी शुड नॉट बी जियोपार्डाइज, इनर सेफ्टी की बात करता हूं मैं। तो मैत्री निभाना भी हमें आना चाहिए कि हमारा हित हम संभाल सके और मैत्री को संभाल सके। और जहां पर हमें लगता है कि नहीं ये मुझे नुकसान करने वाली बात है, मैंने जो बैड हैबिट्स होती है, कुछ कुचारित्र होता है, तो वहां से हमें आराम से दूर हो जाना चाहिए। उसमें कोई गलती नहीं है, उसका द्वेष भाव नहीं कर रहे हैं हम विवेक का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं कि विवेक क्या है, अच्छा बुरा, हितकारी अहितकारी क्या है। और यदि कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो हाँ। ये वीकेंड में होमवर्क टाइम टेबल बनाने का, क्योंकि अभी तो फाइनल एग्जाम आ रही है, उसके ध्यान रख से। और अपना जो कुसंग होता है डेली एक्टिविटीज में वो नोट करके बताना, वनडे के अभी निकालने की दादाजी से प्रार्थना करने का, ओके। और मंडे श्रेया, दीपक दादा, दक्ष, जयेश दादा, ओके। हाँ। आपका
पॉजिटिव भी बताना, सत्संग का भी बताना, आपके फ्रेंड्स के जो पॉजिटिव वर्च्यूज आपको लगते हैं, जो आपको भी हितकारी है, सबको हितकारी, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी देखने से हमारे में पॉजिटिविटी कल्टीवेट भी होगी। ठीक है। अभी शैलजा, इन लोग हाँ जी। अबाउट 15 पॉइंट्स डेली एक्टिविटीज में अभी ट्रैकिंग करते थे, हाँ, और उन ठीक है। लोग का भी ऑलमोस्ट वेरी गुड रिजल्ट आता है। दे आर वेरी वेरी वेरी। सिंसियरिटी अब बढ़ गई है, सो एटलीस्ट नहीं नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया डेली नहीं नहीं, एक्टिविटी। बिल्कुल। और मैं तो बहुत आनंदित हूँ उन लोगों से कि ये उम्र में ये जितनी सिंसियरिटी से, और पुण्यशाली भी हैं तो कर रहे हैं, तो जरूर से आगे तो और भी उज्जवल भविष्य है। जय जय सच्चिदानंद। जय सच जय सच्चिदानंद।